right? Yesterday we discussed answers to part A and part B of review 2 exercises. Is there any doubt in that? If there is any doubt, please raise hand. I'll just look everyone's. Okay. I don't think anybody has a doubt, but agar hoga bhi to you can ask me later. Now we'll focus on the C part. Yesterday I told you that C part says that you have to fill the verbs in their simple past tense. Please keep yourself muted. आवाज नहीं आनी चाहिए. Simple past tense. When I read that it's simple past tense, मुझे जो भी verb दी हुई है उसका past tense use करना है, simple past. तो मेरे दिमाग में फटाफट आ जाना चाहिए that I have to use the second form of verb, and it doesn't make a difference if the subject is singular or plural. चाहे subject singular है, चाहे subject plural है, मुझे verb की second form ही use करनी है. So it's so easy to understand, and then look at the verb and give its second form. So feel की second form कल भी हमने की थी, that it is feel, felt. Feel, felt. Preet, what is the second form of meet? What is the second form of meet? जल्दी से बोलो प्रीत. नहीं आती तो बोल दो नहीं आती. Speak fast. आपकी आवाज नहीं आ रही. यशिका, you speak. Met. Very good. Very good. Meet, met. Meet, met. Arush, give me the next answer. Begin की second form. Begin की second form. Hurry up, Arush. Don't take much time. Okay. Nancy, begin की second form. Begin. इसको begin नहीं बोलते, क्या बोलते? Began. Begin की second form. Began. A-N. Began. Right? अब देखो, आप देख रहे हो, मैं तो sentence भी नहीं पढ़ रही हूँ. सेंटेंस भी नहीं पढ़ रही क्योंकि मुझे बहुत क्लियर है कि सिंपल पास्ट टेंस है और सब्जेक्ट से कोई डिफरेंस नहीं पड़ने वाला मेरे आंसर पर. लेकिन जब मैं सिंपल प्रेजेंट कर रही थी तब मैं पूरा सेंटेंस का सब्जेक्ट जरूर पढ़ रही थी, सब्जेक्ट पढ़ने में, क्योंकि वहां डिफरेंस आता है सब्जेक्ट पढ़ने से. यस कनिका, गिव द नेक्स्ट आंसर. व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ नो? Ma'am, new. Very good. K-N-E-W, new. K is silent. New. No new. Right? Okay. Eti, give me the next answer. What is the second form of eat? Ma'am, eight. अब आप, मैं दोबारा से आपको स्ट्रेस करना चाह रही हूँ. देखो, मैंने बेटा कहीं भी सब्जेक्ट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी. क्यों? क्योंकि मुझे पता है सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर मदर है या प्लूरल वी है, it will not be different, making any difference to my second form of verb. It will always be second form of verb. बस मुझे कहाँ ध्यान रखना होता है सिंपल पास में? व्हेन द सेंटेंस इज नेगेटिव और इंटेरोगेटिव, क्योंकि वहां रूल थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है. क्योंकि हम नेगेटिव कैसे बनाते हैं? डिड नॉट से. राइट? सो डिड नॉट से अगर नेगेटिव बनेगा, डिड ऑलरेडी सेकंड फॉर्म किसकी होती है? डू की. तो मैंने आपको बताया था डिड जहां आ गया उसके साथ हम सेकंड फॉर्म नहीं लगाते, हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं. सो पास्ट टेंस में, सिंपल पास्ट टेंस में सिर्फ जब मैं नेगेटिव या इंटेरोगेटिव बना रही हूं तब मुझे ध्यान रखना होगा कि मुझे सेकंड फॉर्म नहीं लगानी है, डिड के साथ फर्स्ट लगानी है. अदरवाइज चाहे मेरा सब्जेक्ट सिंगुलर है, चाहे मेरा सब्जेक्ट प्लूरल है, आई हैव टू यूज द सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. साची, गिव मी द नेक्स्ट आंसर. टेक की सेकंड फॉर्म. जल्दी जल्दी बोलो बेटा. व्हाट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ टेक? Taked. Taked. No, Sachi. Manish, what is the second form of take? Sachi, mute yourself. Taken. Wrong, Taken. Manish. Wrong. आपको कल भी मैंने कहा था learn करना forms of verbs. Wrong. Okay. Who else will tell me? Kinjal, what is the second मैम form? टुक. Please अपने आप ना बोलें, बीच Ma'am, में took. disturbance होती है. Good. Ma'am, Took. took.
Very good. Mute yourself. So second form of take is took. Thank you, Kinjal. Okay. Now, Shashank, give me the next answer. Second form of write is? Ma'am, wrote. Very good. Second form of write is wrote. Okay. Now, some आरती अपने आप को म्यूट कर ले प्लीज. Jasmine, give me the next answer. Verb दी हुई है do and hide. So what should Did and hide. Very good Ati. Sorry Jasmine. Do का तो हमने second form did कर दिया, लेकिन हाइड का सेकंड फॉर्म हिड कर देंगे तो गलत हो जाएगा. अगर मैं यहाँ सिर्फ हिड Yes, कर ma'am. देती हूँ तो गलत हो जाएगा. क्यों? क्योंकि डिड के साथ मुझे सेकंड फॉर्म यूज नहीं करनी है. आई हैव टू यूज फर्स्ट फॉर्म ओनली. सो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल पास्ट टेंस. आई होप द आंसर्स आर क्लियर. राइट? क्लियर? गुड. Yes, ma'am. Okay, now moving on to the next part. Now, next part, the D part says that you have to fill the blank with either the present or the past or the future, but the continuous forms only. Continuous. ये word पढ़ते ही मेरे दिमाग में क्या आ जाना चाहिए? That it is verb plus ing form. कि मुझे continuous में verb plus ing form ही use करनी है. लेकिन बिकॉज यहाँ पे लिखा है प्रेजेंट पास्ट एंड फ्यूचर, तो अब मुझे सेंटेंस रीड करके खुद डिसाइड करना होगा वेदर आई विल यूज द प्रेजेंट और द पास्ट और द फ्यूचर. और मैंने आपको बताया था तीनों में डिफरेंस क्या है. तीनों में सिमिलैरिटी है कि फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आती है, लेकिन डिफरेंस क्या हो जाता है? बी फॉर्म ऑफ वर्ब. अगर तो प्रेजेंट है तो बी की जगह इज एम आर लगेगा, पास्ट है तो वॉज वर लगेगा, और फ्यूचर है तो विल बी शैल बी लगेगा. दैट्स द ओनली डिफरेंस रिलेटेड टू द सब्जेक्ट. ठीक है? अब लेट्स रीड द आंसर स्टेटमेंट्स. व्हेन आई से आई कैन नॉट गो, कैन नॉट से पता चल रहा है दिस इज द सिंपल प्रेजेंट. कैन इज द फर्स्ट फॉर्म, कैन नॉट. एंड आई कैन नॉट गो, मैं नहीं जा सकती बिकॉज इट डैश हार्ड आउटसाइड. तो मुझे प्रेजेंट की ही सेंस आ रही है. जब मुझे प्रेजेंट की सेंस आ रही है तो मैं इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही लगाऊंगी. और अगर मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैंने इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही लगाना है, तो सब्जेक्ट क्या है मेरा? इट. और इट के साथ लगता क्या है? इज. तो मैंने इज लगा दिया. राइट? इट के साथ इज लगता है ना, तो मैंने इज लगा दिया. अब रेन प्लस आईएनजी क्या हो जाएगा? रेनिंग. सो माय आंसर बिकम्स इट इज रेनिंग. क्या आपने देखा मैंने कितने स्टेप्स लिए डिसीजन लेने से पहले? पहले मैंने सेंटेंस पढ़ा, मैंने डिसाइड किया कि मैं कौन सा टेंस लगाऊंगी. जब मैंने टेंस डिसाइड कर लिया, फिर मैंने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, फिर मैंने ing form of verb lagai. So whenever I am doing, I need to take care of my steps. Now look at the next answer. When I say she dash her last song when we reached the theater. अब looking at this verb reached, मुझे साफ पता चल रहा है this is the second form of verb. So that means यहाँ मुझे past की बात हो रही है. जब यहाँ पास की हो रही है तो यहाँ पे भी पास की ही होगी. राइट? और मुझे भरने क्या है? प्रेजेंट, पास्ट या फ्यूचर कंटिन्यूअस. तो मैंने डिसाइड कर लिया मैं क्या भरूंगी? पास्ट कंटिन्यूअस. अब मैंने पास्ट कंटिन्यूअस डिसाइड कर लिया, तो दैट मींस बी फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी है, वॉज या वर. अब सब्जेक्ट क्या है मेरा? शी. तो शी के साथ क्या आता है? वॉज. शी के साथ क्या आता है? वॉज. राइट? अब आईएनजी फॉर्म, अब मुझे क्या लगानी है? ing form. So sing plus ing, singing. So मेरा आंसर बन गया she was singing her last song when we reached the theater. वो गा रही थी जब हम पहुंचे. Now Jagrit, give me the next answer quickly. Hurry up. Next week Next week. His sister. कौन सा सेंस लगाओगे पहले मुझे बताओ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाओगे, पास्ट कंटिन्यूअस लगाओगे या फ्यूचर कंटिन्यूअस? हाँ, फ्यूचर को. वेरी गुड.
फ्यूचर कंटिन्यूअस लगेगा। अब जब फ्यूचर कंटिन्यूअस लगेगा तो ही के साथ क्या आएगा? will be making विल बी। ही के साथ क्या आएगा? विल बी और मेक प्लस आईएनजी, मेकिंग। वेरी गुड। सो मेकिंग में जब हम लिख रहे हैं ई ड्रॉप कर देंगे और आईएनजी लगा देंगे, राइट? ही विल बी मेकिंग, करेक्ट। ओके, नेक्स्ट आंसर, शिवांश वत्स, unmute and tell me fourth answer. Hurry up. शिवांश वत्स। मैम हाँ जी। we go to मैं पिटाई करने वाली हूँ शिवांश तेरी। ऊपर क्वेश्चन क्या है? या तो हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाना है, या पास्ट कंटिन्यूअस लगाना है, या फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो गो टू तो हो ही नहीं सकता, हमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब तो यूज करनी ही है। अब मुझे पहले ये बताओ, यहाँ कौन सा टेंस लगाओगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगाओगे, पास्ट लगाओगे, या फ्यूचर कंटिन्यूअस लगाओगे? मैम फ्यूचर चलिए फिर फ्यूचर लगाइए। वी के साथ क्या आएगा? शैल आता है, लेकिन विल भी लगा सकते हो, तो शैल भी लगा सकते हो, विल भी लगा सकते हो। will go to अब तेरी बहुत ज्यादा पिटाई होने वाली है, सच्ची। शिवांश बिल्कुल नहीं पढ़ता तू। विल गो क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर। हम क्या कर रहे हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होता है? विल बी और गो क्या होता है शिवांश? विल बी के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। शिवांश रिपीट इट। फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या? will be के साथ ing की फॉर्म। हाँ, तो आंसर क्या बन गया? विल बी गोइंग। म्यूट योरसेल्फ, बहुत शोर में बैठते हो। दीपांशु, अनम्यूट योरसेल्फ। दीपांशु, क्या यहाँ पे बेटा आर गोइंग आ सकता है? अगर मैं यहाँ आंसर आर गोइंग लगा दूं तो क्या ये ठीक होगा दीपांशु? अगर मैं यहाँ पे विल बी गोइंग की जगह आर गोइंग लगा दूं तो दीपांशु क्या ये मेरा आंसर ठीक है? मैम दीपा- यस क्यों ठीक है? मुझे बस रीजन। यस, दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट, दिस आंसर इज आल्सो करेक्ट। क्या आपको याद है मैंने क्या बताया था कि क्यों आंसर ठीक है? ये आंसर इसलिए ठीक है क्योंकि मैंने आपको बताया था कई बार नियर फ्यूचर में भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज कर लेते हैं। अगर आपको याद हो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जब हमने यूजेज किया था तो हमने आपको बताया था जब नियर फ्यूचर है, कई बार बहुत नियर फ्यूचर और डिटरमिन्ड फ्यूचर होता है जहां हमारे प्लान्स बिल्कुल पक्के हैं तो फ्यूचर के, लेकिन बिल्कुल पक्के और बहुत नियर फ्यूचर के हैं, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में भी बोल देते हैं, तो गलत नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे ये दोनों आंसर्स ठीक है। ओके, नाउ हिमांशी गिव मी द नेक्स्ट आंसर। हिमांशी, कुछ बच्चे बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, आवाज देती रहती हूँ। हाँ, वी फेल्ट अफ्रेड बिकॉज इट डैश डार्क, क्या आएगा? कौन सा टेंस आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, या फ्यूचर कंटिन्यूअस? हिमांशी, हाउ मच टाइम विल यू टेक टू अनम्यूट योरसेल्फ? प्रेजेंट आएगा। क्यों प्रेजेंट क्यों आएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्यों आएगा? अभी हमने फील की सेकंड फॉर्म क्या पढ़ी थी? फेल्ट। तो यहाँ साफ साफ दिखाई दे रहा है फेल्ट इज द सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट है, तो यहाँ पे भी पास्ट कंटिन्यूअस आना चाहिए या नहीं? अब बताइए पास्ट कंटिन्यूअस के, हाँ, अब पास्ट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग मुझे क्या आंसर लिखना चाहिए? सब्जेक्ट मेरा इट है, तो मैं यहाँ क्या लिखूं? कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड टिल आई एम टॉकिंग टू यू। हिमांशी, क्या लिखूं यहाँ पे? इट के साथ क्या लगाऊं? बेटा पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होता है? बी की कौन सी फॉर्म लगती है? वॉज वर लगती है ना? तो अब इट के साथ क्या लगाऊं? वर। वेरी बैड, वॉज। ही शी इट सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब वॉज, ठीक है?
It was. हाँ, getting. T double हो जाएगा. हिमांशी एक बार दोबारा आज बैठ के Getting. रिवाइज करेंगे आप, ठीक है? Watch the video again that जो अभी मैंने Zoom class पे किया है, I'll be recording and sending. Watch it again, listen to it again, and do it again with conscious listening. Okay, you will get it. But practice only will help you. Okay, thank you, Imanchi. Now unmute yourself. Now, Venika, give me the next answer. I did not disturb him because he dashed his homework. He was doing. Very good. He was doing. Was क्यों लगाया? देखो यहाँ पे है did not disturb. Second form of verb did और उसके साथ first form of verb disturb. That means past tense. So मुझे भी यहाँ पे past tense लगाना है. He was doing. मैंने उसको disturb नहीं करा क्योंकि वो काम कर रहा था. Very nice. Okay. Who is left? Saksham, give me the next answer. Saksham Goyal. Give me the next answer. Hurry up. These days, Karan dash to learn to play tennis. Bracket में है learn. These days, Karan dash to. कौन सा tense लगाओगे? Present, past या future continuous? Present. जोर से बोलो. Present tense. Very good. Present continuous tense. कौन सा लगाओगे? Present continuous. अब क्या लगेगा present continuous के हिसाब से? Subject Karan है. क्या लगाऊं यहाँ पे? Is. Very good. Is. और आगे क्या आएगा? Learning. वेरी नाइस. कारण जब हम ऐसे सोच के लिखेंगे हमारा आंसर गलत हो ही नहीं सकता. वेरी नाइस. ओके, नेक्स्ट आंसर मनसिमरन. मनसिमरन, गिव योर आंसर. हरी अप. मनसिमरन. Mansimran is not listening. Okay, somebody else. Mansimran, are you ready to give your answer? You have unmuted, but you are not. So जल्दी बोले बेटा. You are taking too much of time. Okay, you अब कौन सा tense लगाएंगे हम? Yes. Present, past या future continuous? मनसिमरन. Present. वेरी गुड. तो फटाफट बताओ प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या लगाऊं यू के साथ? You are. वेरी गुड. रिंग का क्या हो जाएगा? Ringing double. हाँ, Ringing. रिंगिंग. जुकाम हुआ है मनसिमरन आपको? Ma'am, ring. जुकाम हुआ पड़ा है? Yes. हाँ, आवाज खराब हुई है. Yes, ma'am. ठीक है, म्यूट योरसेल्फ. म्यूट योरसेल्फ. राइट, प्लीज नोट डाउन द आंसर्स. मेरा लैपटॉप भी